السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وبال عشق بائی سائرہ رمضان ایپیسوڈ 2۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے جا رہے تھے۔ وہ تینوں ایک پرانے گھر میں کھڑے تھے جو تقریباً سارا پتھروں کا ہی بنا ہوا تھا۔ گھر کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ وہاں صرف کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ جالے، کھردری دیواریں اور لکڑیوں سے بنی چیزوں کو دیمک نے اچھی طرح چاٹ رکھا تھا۔ زاور خان بابا کسی صندوقچی میں سر جھکائے کھڑا تھا، پھر اس نے کالے رنگ کا تھیلا حارب کو تھمایا۔ دھیان سے رکھو اس کو، اگر یہی پھٹ گیا تو تمہارے ارمان بھی ساتھ پھٹ جائیں گے۔ زاور نے 2 سے 3 عدد بم حارب کی طرف بڑھائے۔ مسکین سی شکل بنائے اس نے وہ بم لیے اور احتیاط سے اس تھیلے میں ڈال دیے۔ پھر اسی صندوقچے میں سے 3 ریوالور نکال کر اس نے عدلال کو تھمائے۔ کسی تھیلے میں ڈالنے کی بجائے اس نے وہ ریوالور اپنے کوٹ میں اندر کی جانب چھپائے۔ تھوڑی دیر تک زاور ان کو نقشے پر کچھ سمجھاتا رہا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس گھر سے نکل آئے۔ پہلی بار زوار نے اپنے مقصد کے لیے آج گاڑی کی بجائے بائیکس کا انتخاب کیا تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وقت آنے پر وہ گاڑی کی بجائے اس سے زیادہ آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ کوئٹہ کے علاقے سکائی میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بائیکس گھنے درخت کے نیچے کھڑی کی۔ آگے بس تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کرنا تھا۔ 15 سے 20 فٹ تک کے فاصلے تک وہ لوگ پیدل چل کر آئے۔ اب وہ ایک عالی شان حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کوئی 3 منزلہ عمارت تھی۔ بنانے والے نے اسے بڑی مہارت سے بنا رکھا تھا، لیکن وہ حویلی خان بابا کی حویلی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ان کی نظروں کا معائنہ کیا جائے تو وہ تینوں اسی حویلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خان بابا نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر دوڑائی اور پھر آنکھ کے اشارے سے دونوں کو آگے بڑھنے کا سائن دیا۔ اگلے کچھ سیکنڈز میں وہ لوگ اس حویلی کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ ایک گارڈ ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس ٹائم زوار کا چہرہ بالکل بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ کون ہو تم لوگ اور اس طرح سے کیوں آئے ہو؟ گارڈ نے سخت لہجہ استعمال کیا تھا۔ خان بابا نے اس کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ گارڈ نے اس کی سنہری بھوری آنکھوں میں دیکھا اور اس کا اگلا سانس اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ وہ بہت خاموشی سے سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حارب نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ حارب کو صحن میں چھوڑ کر وہ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوئے۔ حارب نے بم کو 1 گھنٹے کی ٹائمنگ پر سیٹ کیا اور راہداری کے راستے میں رکھا، اور اس حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر نوکر چاکر تھے تو شاید اپنے مخصوص کمرے میں سو رہے ہوں گے۔ زوار خان بابا لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر پرسکون سا بیٹھ گیا۔ شاید وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ آگے کے 2 بم عدلال نے سیٹ کرنے تھے جو کہ وہ لے کر اوپر کی جانب جا چکا تھا۔ حارب نے کچھ فائلز خان بابا کے سامنے لا کر رکھ دی۔ خان بابا نے ایک نظر سب پر دوڑائی اور پھر اپنے کرتے کی جیب سے لائٹر نکال کر ان کو جلا دیا۔ ایک دم سے ہی آگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور پھر اگلے ہی لمحے بجھ گیا، مگر ان فائلز کو راکھ کر گیا۔ 20 منٹ گزر چکے تھے مگر عدلال ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ کال کرو اسے، 2 سیکنڈ کے کام میں 2 گھنٹے لگائے گا کیا؟ خان بابا کے کہنے پر حارب نے جیب میں موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا جب عدلال نے اسے سیڑھیوں سے اترتا ہوا نظر آیا۔ حارب نے موبائل کو جیب میں ہی رہنے دیا۔ خان بابا کندھے پر شال سیٹ کرتا ہوا کھڑا ہوا۔ گھر کر عدلال دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ یہ تمہاری آخری غلطی تھی عدلال، کوئی میرے وقت کا ضیاع کرے میں اسے ضائع ہی کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ عدلال چپ رہا، بس سر جھکائے۔ زوار صوفے سے اٹھا، قدم راہداری کی طرف بڑھائے۔ خان بابا چل کر واپسی اسی گاڑی کے پاس آیا جو ڈرا سہما کھڑا تھا۔ اسی گارڈ کے پاس آیا جو ڈرا سہما کھڑا تھا۔ دائیں ہاتھ سے خان بابا نے اس کی گردن پکڑی۔ وہ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگا مگر آگے بھی خان بابا تھا۔ تم نے ہم سے اونچے لہجے میں بات کی، اس کے باوجود بھی تمہیں زندہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مالک کو بتا سکو کہ وہ میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکا۔ کہہ دینا اسے استادوں سے استادی اچھی نہیں لگتی۔ میدان میں اترنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والے نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اگر آج کے بعد وہ میرے راستے میں آیا تو اس کا خون تک پی جاؤں گا۔ اور خان بابا کہاوتیں صرف کہتا نہیں، کر کے بھی دکھاتا ہے۔ کہنے کے بعد اس نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور آگے بڑھ گیا۔
तुम लोग जाओ, मैं यहीं से घर चला जाऊंगा। क्यों, तुम्हें कोई कौन सा वायरस लग गया है? अचानक अदलाल ने साथ चलने से मना किया तो हारिब ने तंजिया कहा, हारिब बैठो, उसको ज़्यादा शौक हो रहा है वक्त ज़ाय करने का, और मेरा वक्त इतना गया गुजरा नहीं। अगर वो नहीं आना चाहता तो मत आए, मगर इसे कहो सुबह 9 बजे मुझे हवेली में मिले। खान बाबा ने हारिब को मुखातिब करते कहा, मगर अदलाल से उसकी नाराज़गी पक्की थी। फिर वो फट फट से बाइक स्टार्ट करता वहां से गायब हो गया, जबकि अदलाल अभी भी वहीं खड़ा कुछ सोच रहा था। 25 मिनट के बाद उसी हवेली में गाड़ी इंटर होती हुई नजर आई। गाड़ी में से ड्राइवर ने निकल कर गेट खोला। गेट पर गार्ड को ना देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत होने लगी थी। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक कलर का ही लंबा कोट पहने वो उस गाड़ी से बाहर निकली। उसके साथ एक और शख्स भी था। उसकी उम्र तकरीबन 35 के लगभग लगभग थी। उन्होंने गेट में अभी पहला कदम ही रखा था कि जोरदार धमाके से वो दोनों दो कदम पीछे जा गिरे। शोले इस कदर आसमान में उठ रहे थे कि इन दोनों ने पहले अपनी आंखों पर हाथ रखा। इस हवेली की दीवारें किसी रुई की मानिंद आसमान में उड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों के हवास जाते रहे। जवार खान, इस 35 साल आदमी ने खान बाबा का नाम चिल्लाते हुए अपने पास खड़ी गाड़ी पर जोरदार मुक्का मारा, जबकि 26 साल लड़की गुस्से से हाथ भीजे खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल हो रहा था। उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, उनकी सारी धन दौलत उनकी आंखों के सामने राख हो चुकी थी, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये 2 दिन बाद की बात है, जब हारिब और अदलाल गार्डन एरिया में बिछी कुर्सियां पर विराजमान थे। अदलाल के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। वो जितना मर्जी इनकार कर लेता, मगर वो खौफजदा हो रहा था, क्योंकि जवार के बुलाने पर भी वो हवेली नहीं आया था। हारिब के कॉल करने पर उसने अपना मोबाइल से स्विच ऑफ कर दिया था। उसने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया था कि ज़वार उसे बुलाए और वो ना आए, मगर अब हुआ था। क्यों हुआ था वो नहीं जानते थे। थोड़ी देर बाद जब ज़वार राहदारी से निकलता हुआ नजर आया, खिलाफ मामूल उसने कंधों पर शॉल नहीं ओढ़ रखी थी। ज़वार 28 साल एक खूबसूरत तरीन मर्द था, और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी उसकी शान में और इजाफा करती थी। वजीह अंदाज में चलता हुआ वो किसी रियासत का शहजादा लगता था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। शायद आज वो घर पर ही रहने वाला था। वो किसी से कॉल पर बात करते हुए आ रहा था। कुछ कदम के फासले पर आकर उसकी नज़र अदलाल पर पड़ी। अगले ही पल उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने कान से फ़ोन उठाया और उनकी जानिब चल कर आया। अदलाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जबकि हारिब अभी तक भी बैठा हुआ था। अदलाल गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। जवार ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। कहाँ थे तुम? जवार ने दांत पीसते हुए कहा। मैं घर था। अदलाल ने नज़र झुकाए कहा। घर क्यों थे? उसका लहजा सख्त मजीद सख्त होता जा रहा था। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बस। कौन है वो? जवार ने उसकी बात काट कर कहा। कौन? अदलाल ने नज़रें उठाकर देखा। चटाक। जवार ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो लड़खड़ा गया। मैं उससे निकाह करने वाला हूँ। अदलाल का लहजा माज़रत वाला था। क्या लगती है वो तुम्हारी? जवार ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो मुझे पसंद है। शायद मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी है। अदलाल के जवाब पर उसने झटके से उसका गिरेबान छोड़ दिया। पागल हो गए हो तुम? यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो तुमने उसे देखा और तुम्हें इश्क हो गया? तुम कब से इन चक्करों में पड़ गए? हम जैसे लोग इश्क नहीं कर सकते अदलाल। क्यों नहीं कर सकते? इस बार अदलाल ने बहुत हिम्मत से जवाब दिया था। क्योंकि हम लोग दिल नहीं रखते। हम नहीं, सिर्फ तुम। जवार, सिर्फ तुम दिल नहीं रखते। तुम अपनी कमज़ोरी खुद पैदा कर रहे हो। जिस फील्ड में हम काम करते हैं वहाँ हमारी कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। तुम उसको जहाँ से लाए हो वापस वहीं आओगे, अभी और इसी वक्त। जवार ने जैसे हतमी ऐलान किया था। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। हारिब ने गौर से अदलाल को देखा। वो कब जवार के सामने इनकार करता था भला? मतलब तुम एक लड़की की खातिर अपना काम छोड़ दोगे? मोहब्बत है वो मेरी। मोहब्बत? व्हाट रबिश! वो तंजिया हंसा। ठीक है अदलाल, तुम जा सकते हो। तुम जैसे कमज़ोर मर्द मैं नहीं रख सकता जो एक लड़की की खातिर अपनी मर्दानगी भूल बैठे। और तुम्हें क्या लगा था तुम नहीं बताओगे तो हम बेखबर रहेंगे? मुझे उसी दिन पता था कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहते। तुम एक हुस्न की देवी के साथ लाना चाहते थे ताकि तुम जवानी का मज़ा ले सको, और फिर
بس زوار، بس ایک لفظ بھی اور نہیں، تم حد پار کر رہے ہو۔ میں نے کہا ہے میں اس سے نکاح کروں گا، اور نکاح کرنے والے مرد بزدل نہیں ہوتے، اور میری بد دعا ہے کہ زوار تمہیں بھی کسی سے محبت ہو، مگر خدا کرے تم اس کے لیے ترسو، اتنا ترسو کہ خود کو دنیا کا مفلس سمجھنے لگو، اس دن تمہیں احساس ہوگا۔ خدا کے پاس فضول وقت نہیں ہے عدلال جو تمہاری سو کالڈ بد دعائیں قبول کرنے بیٹھ جائے، اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ نوچ لوں۔ گیٹ لاسٹ۔ عدلال نے آخری نظر زوار پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے قدم موڑے، اس کی ایک آس تھی کہ وہ اسے روک لے گا، وہ اسے کہے گا عدلال کوئی بات نہیں، نہ جاؤ تم، مگر نہیں، وہ تو زوار تھا، اس کا دل کیسے پگھلتا، وہ تو دل رکھتا ہی کہاں تھا، اور پھر اس نے عدلال کو جانے دیا۔ عدلال بھی ایک مرد تھا، پھر وہ کیوں رو رہا تھا؟ شاید زوار اور اس کا بچپن والا ساتھ آج ختم ہو چکا تھا، اس کی زندگی میں صرف ایک دوستی کا رشتہ تھا اور وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ 2 دن پہلے کی رات، بالائی سطح کے ایک کمرے میں اس نے بم رکھا، پھر وہ اس کمرے میں سے باہر نکل آیا، چلتے ہوئے اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اسے اچانک سے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی، اس نے بائیں طرف گردن موڑ کر دیکھا جہاں کچن تھا، نظر انداز کرتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھایا، جب اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے قدم اس جانب بڑھا دیے، وہ ایک درمیانے قد کی لڑکی تھی، کمر تک آتے کالے سیاہ بال، اس نے لون کا ڈھیلا ڈھالا ڈریس پہن رکھا تھا، شاید وہ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھ پر پھونک مار رہی تھی، پھر وہ سنک کی جانب بڑھی، نل کھولی اور اپنا ہاتھ اس کے بہتے پانی میں گیلا کرنے لگی۔ عدلال نے 2 قدم آگے بڑھائے، قدموں کی چاپ سنتے ہوئے اس لڑکی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، اس نے بھاگ کر شیلف کی طرف قدم بڑھائے اور اس پر اٹکے دوپٹے کو کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سوری صاحب جی، بس کھانا تیار ہونے والا ہے، میں ابھی لگا دیتی ہوں، آپ غصہ نہ کریے گا، کہتے ہوئے وہ کڑھائی میں چمچ ہلانے لگی۔ اس لڑکی نے ابھی تک عدلال کو نہیں دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ عدلال نے چند قدم کے فاصلے پر پوچھا۔ میں وہ اٹکنے لگی۔ ہاں تم، اور رو کیوں رہی ہو؟ اس لڑکی نے نظر اٹھا کر دیکھا، اسے جیسے جینے کی روشنی ملی تھی، زندگی کی ایک خاص ملی تھی، اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہونے لگی۔ صاحب جی پلیز، کیا آپ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ آپ کا احسان ہوگا، مجھ سے جتنے پیسے مانگیں گے میں آپ کو کما کر دے دوں گی، مگر آپ مجھے یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ میں جانتی ہوں آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ کیا تم مجھے بتانے کی زحمت کرو گی کہ تم کون ہو؟ اس کے لہجے میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ لمحے بھر کو وہ لڑکی رکی، وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے بتائے یا پھر بتا کر مزید پھنس نہ جائے۔ میں حاذقہ ہوں، مجھے سزا کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے اور بہت جلد مجھے اصل سزا دی جائے گی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، مجھے اپنی ماں کو بچانا ہے، وہ مر جائے گی میرے بغیر، میرا باپ میری ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، آپ پلیز میری مدد کر دے، بس اس حویلی سے باہر لے جائے۔ رو رو کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ عدلال نے اس کے چہرے پر سرسری سی نظر دوڑائی، وہ واقعی معصوم تھی، بہت معصوم۔ فی الحال میں تم سے زیادہ تفصیل نہیں پوچھنا چاہتا، میں نہیں جانتا تمہیں کیوں سزا کے طور پر یہاں لایا گیا ہے، مگر میں تمہیں یہاں سے باہر لے جاؤں گا، تم چلو میرے ساتھ۔ عدلال آگے بڑھتا ہوا کچن سے باہر نکل آیا، وہ بھی ڈری سہمی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ عدلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کوریڈور میں روکا، کیونکہ سامنے لاؤنج میں صوفے پر زوار بیٹھا ہوا تھا۔ زوار کی اب بھی اس جانب پشت تھی۔ عدلال نے اسے پلر کے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا، وہ 2 قدم بڑھائے، پلر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ عدلال نے اس کے حلیے پر نظر ڈالی، اسے اس پر بہت ترس آیا۔ عدلال کو ایک دم یاد آیا کہ اس نے کمرے میں ایک شال پڑی دیکھی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھائے اوپر آیا اور اس کمرے میں انٹر ہوا، شال اٹھائی، اسے گول مٹول کر کے اکٹھا کیا اور پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ نیچے آیا۔ اس سے پہلے کہ زوار یا حارب میں سے کوئی اسے دیکھتا، اس نے وہیں سے ہی شال حاذقہ کی طرف اچھالی اور باقی کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اسے لگا وہ زوار کی آنکھوں میں دھول جھونک چکا ہے، لیکن وہ کیسے بھول گیا؟ وہ خان بابا تھا، ہوا کا رخ دیکھتے وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے اور آگ کہاں پھیلنے والی ہے۔ پلر کے پیچھے سے آتے حاذقہ کے سائے کو تو وہ بہت پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عدلال اسے بتائے، مگر عدلال نے اسے سب چھپایا، اور یہی وہ چیز تھی جو اس کا دماغ گھما چکی تھی۔ زوار کو اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ان کو روانہ ہوتا دیکھ کر وہ واپس حویلی میں آیا۔ آ جاؤ۔ عدلال کی آواز پر وہ شال سیٹ کرتی آئی۔ عدلال اسے ساتھ لیے بائک پر روانہ ہوا۔ پھر وہ حاذقہ کے بتائے ہوئے راستے پر رواں دوا تھا۔ اب رونا بند کرو،
लेकर जा तो रहा हूँ। हास्का की सिसकी उसे तंग आकर अदलाल ने कहा तो उसे बेहद शर्मिंदगी हुई। कुछ फासला तय करने के बाद वो अब कच्ची बस्ती में दाखिल हुए। 2-3 घर छोड़ने के बाद हास्का ने चौथे घर की तरफ इशारा किया। अदलाल ने अपनी बाइक उस घर के सामने रोकी। ये भी इत्तेफाक था कि वो लोग बाइक पर निकले थे, क्योंकि उस बस्ती में गाड़ी का चलना तकरीबन नामुमकिन था। हास्का ने उस लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। 2 से 3 बार दस्तक देने के बाद वो दरवाज़ा खुला। सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ और निढाल सी तबीयत। हास्का को देखते ही वो फौरन उससे गले आ लगी। हास्का की आंखें फिर से नम हुई, आंसू उमड़ कर निकले। मेरी बच्ची, तू क्यों आई है वापस? तू चली जा यहाँ से, तेरा बाप तुझे मार देगा। पूरे गांव वालों को पता है कि तू किसी के साथ भाग गई है। तेरा बाप तुझे देखते ही मार देगा। नहीं अम्मा, आप कैसी बातें कर रही है? मैं नहीं भागी यहाँ से। मैं समझा दूंगी अब्बा को। वो बेयकीनी से रो भी रही थी और अफसोस भी कर रही थी। बेबसी सी हालत थी। मुझे पता है, सब पता है, मगर हम किस किस को गवाही दे? हाज़िका, मेरी बच्ची, तू चली जा यहाँ से। तुझे खुदा का वास्ता पुत्र, तू ले जा मेरी बच्ची को। देख, तू यहाँ तक भी तो लाया है ना। तुझे तेरी माँ का वास्ता, तू उसे यहाँ से ले जा। नहीं अम्मा, अब्बा मारेगा मुझे, मार डाले, मगर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो अपनी माँ के हाथ थामे फरियाद कर रही थी। उसकी माँ हसद भरी निगाहों से अदलाल को देख रही थी। अदलाल ने हास्का का हाथ थामा, वो छुड़ाने लगी, मगर अदलाल ने गिरफ्त सख्त कर दी। बेफिक्र रहे अम्मा, मैं खुद ख्याल रखूंगा इसका। अदलाल ने सर झुकाया, उस बुजुर्ग औरत से सर पर प्यार लिया। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला था। वो एक यतीम बेसहारा था, सिवाय जवार के उसका और कोई न था। वो उसका हाथ थामे ले आया। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो उसे अपने घर में ले आया। वो रही थी वो रो रही थी। अदलाल ने उसे चुप होने को नहीं कहा था। वो घर 2 कमरों के साथ एक छोटे से सहन पर मुश्तमिल था। सारा घर पत्थरों से बना हुआ था। वहाँ तकरीबन सारे घर ही पत्थरों से बनाए जाते थे। जब रोना धोना खत्म कर लेना तो इस कमरे में जाकर सो जाना। अदलाल ने दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें उठाकर उसे देखा। उसके साथ जो मर्जी हो रहा हो, मगर वो अपने रब की शुक्रगुजार थी कि वो एक दलदल से बाहर निकल आई थी। अदलाल चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सो गया। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वो चारपाई पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। हास्का ने एक नज़र उस कमरे में दौड़ाई और फिर उसके साथ वाले कमरे में, जहाँ वो अब जाने वाली थी। वो फिर चुपचाप उस कमरे में आ गई। उसे भूख भी लग रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। दरवाज़ा बंद करके वो कंबल ओढ़ कर लेट गई। काफ़ी देर तक वो छत को घूरती रही और फिर नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि बाहर धुंध की वजह से अभी तक अंधेरा है। वो चारपाई से नीचे उतरी, कंधों के गिर्द अच्छी तरह शॉल लपेटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। वो एक छोटे से किचन में बैठा आग जला रहा था। मुंह पर पानी की छिटे मारकर वो भी साथ जाकर खड़ी हो गई। साहब जी, मैं बना दूँ? उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। नहीं, बस खाना तैयार है, तुम आखिर में चाय बना देना। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊँगा। तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। हाज़िका ने इस बात में सर हिला दिया। अदलाल अपना खाना उठाए कमरे में आ गया, जबकि हाज़िका वहीं बैठकर खाने का काम कम और रोने का ज़्यादा कर रही थी। फिर उसने चाय बनाई। खाने के बाद वो करीबी बाजार से उसके लिए 3 सूट ले आया। हाज़िका ने उसमें से एक सूट निकाला जो वाइट ट्राउज़र और नीले कलर की घुटनों तक आती कमीज़ पर मुश्तमिल थी। इतनी सर्दी में भी वो उसके ड्रेस के साथ कर्निकल का दुपट्टा ले आया था। शायद उसे कपड़े लेने का कुछ भी तजुर्बा न था। लिबास पहनने के बाद उसने खुद का मुआयना किया। वो आज खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिलकश। उसने बहुत कोशिश की कि वो उस दुपट्टे को संभाल सके, मगर उसकी पहुंच से बाहर रहा। उकताते हुए उसने वो दुपट्टा उतार कर पहले वाली शॉल उठाकर अपने गिर्द लपेट ली। उसके बाद वो दोबारा कमरे से बाहर नहीं निकली थी। थोड़ी देर बाद अदलाल ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जी साहब। वो बहुत फर्माबरदारी से उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। हाज़िका, मैंने कभी माँ का प्यार नहीं पाया। तुम्हारी अम्मा का हाथ मेरे सर पर रखते ही मुझे माँ की शफ़क़त का एहसास हुआ। मेरा दिल आज तक सब जज्बात से आरी था, मगर अब नहीं। मैंने उनसे कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हें किसी और को नहीं सौंप सकता और बगैर किसी रिश्ते के मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं रख सकता। मैं तुमसे निकाह करूँगा। अगर तुम्हें एतराज़ हो तो मुझे बता देना, मैं घर पर ही हूँ। हाज़िका ने सर उठाकर उसे देखा, मगर वो मुड़ चुका था। वो उसकी पुश्त देखती रह गई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और कोई सहारा नहीं था। वो सही कह रहा था। वो बगैर किसी रिश्ते के कैसे गैर महरम के साथ रह सकती थी।
सारा दिन गुजर चुका था। वो उसी किचन में बैठी आग जला रही थी। चूल्हे पर उसने दाल मेथी का सालन चढ़ा रखा था। सफ़ेद शलवार कमीज में वो गीले बालों के साथ वहाँ आया। तुमने मुझे अब तक कुछ नहीं कहा। तुम्हारी चुप को मैं हाँ समझ चुका हूँ। यकीनन तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। एक हाथ से वो कमीज के बाजू ऊपर चढ़ा रहा था। उसने बमुश्किल गले से आवाज़ निकालना चाहिए। आपको तो कोई एतराज़ नहीं, क्या मुझे कबूल कर लेंगे? वो पता नहीं क्या पूछने की कोशिश कर रही थी। शायद तुमने खुद को कभी देखा नहीं। कौन कमबख्त तुम्हें कबूल नहीं करेगा? मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो। हाज़िका ने नफ़ी में सर हिलाया तो बाहर चला गया। वापसी पर उसने ग्रोसरी का कुछ सामान लिया लिया हुआ था। वो रात भी उसी तरह गुजरी, खामोशी और उदास। अगली सुबह सबसे पहले वो जवार से मिलने का इरादा रखता था। मौजूदा सूरत हाल। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा बालों में कंघी फेर रहा था। उसने ड्रेसिंग मिरर के ड्रॉ से ब्लैक कलर की रिस्ट वॉच निकाली। वो हमेशा उसे अपने दाएं हाथ में ही पहनता था। वो ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस था। यही वजह थी कि सैकड़ों घड़ियों के दरमियान उसने ब्लैक वॉच का ही इंतखाब किया था। अब वो कफ के बटन बंद कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की तरफ देखा। तैयार हो तुम? सराज खान ने दाखिल होते ही कहा। जी बाबा जान, बस 2 दिन में ही अब वो 5 कारखाने आपके कदमों में होंगे, जवार ने बड़े यकीन से कहा था। मैं जानता हूँ जवार, तुमने कहा है तो करके भी दिखाओगे। फिलहाल हम उसी मकसद पर ध्यान देते हैं। वो वाला मामला अभी दूर रखते हैं। जिस तरह से तुम उनको सड़क पर लाए हो, वो अब हमारे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करेंगे। सराज खान की इतने फ़ख्र से कहने पर उसने हाँ में गर्दन हिलाई। जवार, ये मामला खैर संगीन है। तुम्हें ये फाइल्स पुलिस की नज़रों से हर हाल में बचानी होंगी और उस दौरान तुम किसी को कत्ल नहीं करोगे। तुम्हारा छोटा सा कदम हमें मुसीबत से दो चार कर सकता है। जानता हूँ बाबा, पर गारंटी नहीं दे सकता कि अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो जिंदा बच सकेगा, मगर मैं कोशिश करूँगा। सिराज खान ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश जवार, तुम्हारी यही दहशत मेरा गुरूर है। अब तुम जाओ और मेरे राब्ते में रहना। कहने के बाद सिराज खान बाहर निकल आया। जवान ने बेड पर पड़ी शॉल उठाकर कंधों पर ओढ़ी, ड्रेसिंग टेबल से मोबाइल उठाया और साथ ही गाड़ी की चाबी। सीढ़ियाँ उतर कर वो नीचे आया। हारिब उसके इंतजार में लाउंज में बैठा था। उसे देखकर फौरन खड़ा हुआ। दोनों राहदारी से बाहर निकले। जवार ने हारिब को चाबी थमाई तो उसने पोरस से गाड़ी निकाली। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते वो हारिब के साथ वाली सीट पर बैठा। गेट से गाड़ी बाहर निकालने के बाद वो मंजिल की तरफ रवाना हुए। महरूश ने आज सुबह से रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का पहला मुजरा होने वाला था। आज वो तवाइफ का किरदार अदा करने वाली थी। उसने कितनी दुआएं मांगी थी कि कोई मौजज़ा हो और वो एक किरदार अदा ना कर सके, मगर कोई मौजज़ा नहीं हुआ था। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। वो जिसके आसरे आज तक जीती आई थी वो सिर्फ उसकी माँ थी। और क्या वो इतनी कमज़ोर थी कि उसे इस दलदल से नहीं निकाल सकती थी? रोना धोना बंद करो। तुम रो रो कर आंखों के नीचे हल्के पड़ गए तो तुम्हारी खूबसूरती में कमी आ जाएगी, और अगर तुम्हारी खूबसूरती नवाबों को पसंद ना आई तो अशबा बाई को कितना ज़्यादा माली नुकसान हो जाएगा, सोचा भी है तुमने? अरमला अपने हाथों की उंगलियों के लंबे लंबे नाखून को मजीद संवारने में लगी थी। आपा, क्या आप मेरी हालत समझने से कासिर है? क्या सबको उनकी गुलामी करनी आती है? यहाँ कोई अपने हक में क्यों नहीं बोल सकता? आखिर क्या कसूर है मेरा? कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी खूबसूरती का है। किसने कहा था इतना हसीन पैदा होने के लिए? जरा सानोली होती तो अशबाबाई तुम्हें खुद ही उठाकर बाहर फेंक आती। हरमला ने आंखों को घुमाते एक अदा से कहा और फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। महरू शीशे के सामने खड़ी खुद को बगौर देख रही थी। उसका दिल कर रहा था वो अपने चेहरे को इतना नोचे कि खूबसूरती नाम की कोई चीज़ उसके पास ना बचे, मगर वो रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। रात के 8 बज रहे थे। वो सड़क के किनारे गाड़ी रोक के खड़े थे, क्योंकि कुछ किलोमीटर्स के फासले पर उनको पुलिस की एक चौकी नजर आ चुकी थी और फिलहाल के लिए जवार ने किसी से कोई पंगा नहीं लेना था, इसलिए पुलिस की नज़रों से बचना ज़रूरी था। क्या हुआ? फ़ोन नहीं उठा रहे? आखिरकार वो भी गाड़ी से बाहर निकल आया। हाँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जवार कब से सिराज खान को कॉल किए जा रहा था। शायद सिग्नल की कमी से रिसीव नहीं हो रही थी। 5वीं बार कॉल करने पर कॉल रिसीव हुई। बताइए आगे क्या करना है? पुलिस ने तो नाकाबंदी लगा रखी है।
ज़वार मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम गाड़ी को वहीं से मोड़ कर उस जगह पर चले जाओ। आज रात तुम वहीं रहो, तुम्हें वहाँ कोई मसला नहीं आएगा, वो सेफ जगह है, पुलिस वाले वहाँ आने का सोच भी नहीं सकेंगे। सिराज खान ने उसे एक लोकेशन भेजी तो उन्होंने उसी डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ ली। वो तकरीबन 45 मिनट का सफ़र था जो उन्होंने तय किया था। अब वो एक इमारत के सामने खड़े थे। वो 4 मंजिला इमारत थी, लाइटिंग से सजी हुई। शुरू में ही तो उन्हें लगा शायद कोई शादी वाला घर है, और फिर अचानक ही उन्हें मालूम हो गया कि वो बाज़ार हुस्न का तवाइफ खाना है। अशबा बाई उनका इस्तकबाल करने खुद बाहर तक आई थी। वो सिराज खान को शायद अच्छी तरह से जानने वाली थी। जवार ने उनके गर्मजोशी पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। मैदान में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो उशबा बाई के साथ अंदर आए। अंदर का माहौल मर्दों से खचाखच भरा हुआ था। जवार का दिल किया वो 2 मिनट से भी पहले वहां से चला जाए। उशबाबाई ने एक बड़े सहन में उनको बिठवाया। एक कनीज ने उनके सामने मशरूबात लाकर रखे। वो एक बड़े सोफे पर बैठे थे। फर्श पर खूबसूरत कालीन बिछी हुई थी जो कि बहुत नर्म व मुलायम थी। सोफों को एक तरतीब में रखा गया था जहाँ पर बड़े बड़े नवाब आ रहे थे और बैठ रहे थे। उनमें से ज़्यादातर मर्द अधेड़ उम्र के थे। जवार ने अपनी कमीज की जेब से मोबाइल निकाला और लापरवाह था उस पर उंगलियां फेरने लगा। इसी लम्हे में 2 मर्द उसके साथ वाले सोफे पर आ बैठे, जिनमें से एक की उम्र 32 के करीब होगी जबकि दूसरा 45 का मालूम होता था। वो टांग पर टांग चढ़ाए जमाए हुए अमीर होने का पूरा सबूत दे रहा था। हारिब को इस माहौल में जैसे खूब खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। थोड़ी देर बाद उशबाबाई भी उनके दरमियान आकर बैठ गई। और सुनाए आतिम, क्या हाल है? क्या ख्याल है आज आप अपनी नवाबशाही को बरकरार रख सकेंगे या नहीं? उशबाबाई ने उस 45 साल आदमी को मुखातिब किया जिसका नाम शायद आतिम था। कोई शक? पूरे 1 महीने से हम इस हुस्न का इंतज़ार कर रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है उस लड़की में जिसकी डिमांड आपने सबसे ज़्यादा रखी है। उसने सामने मिरर की मेज़ पर से शराब की बोतल उठा ली। हाँ, क्यों नहीं? ऐन मुमकिन है कि आप उसको ख़रीदने के काबिल ना रहे। उशबाबाई ने जैसे उसे वार्निंग दी थी। भूले मत उशबाबाई, हम नवाब आतिम शाह है। यहाँ पर किसी नौजवान में इतनी जुर्रत नहीं है कि कोई आतिम शाह के मुकाबले में उतर सके। शराब गिलास में उंडेलने के बाद उसने अपने लबों से लगाया। जवार, अब तो मैं भी देखना चाहूँगा इस हुस्न की देवी को जो सारे नवाब आज मुकाबले पर उतरे बैठे हैं। हारिब की आवाज़ पर जवार ने गर्दन उठाकर उसे देखा। फिर उसने गर्दन मोड़कर आतिम को देखा। ऐसा नहीं था कि वो सानोली रंगत का था। वो चिट्टा गोरा ज़रूर था मगर हसीन फिर भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उशबाबाई वहाँ से उठकर चली आई और फिर 10 मिनट के वक्फे के बाद वो सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आई। उसके साथ एक लड़की भी थी। पाँव को छूते लहंगे में उसके पाँव पायल जैसी जंजीरों में कैद थे। उसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ था। उसकी जुल्फें खुली थी, हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे। उसका चेहरा रोशन उदास था। उसकी भूरी सुनहरी कांच जैसी आंखों में भी नमी उतर रही थी मगर उसे कंट्रोल करना था। उसे रोना नहीं था। वो बहुत मायूसी से चल रही थी। अजबाबाई उसका हाथ थामे उसे नीचे लाई, एक सोफे पर उसे बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गई। आखिरकार हर किसी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अजबाबाई ने उसकी कीमत लगाना शुरू कर दी। वो कोई चीज़ तो नहीं थी, फिर वो क्यों बिकने जा रही थी? उसे लगा वो कभी नहीं उठ पाएगी। 5 करोड़। नवाबों के एक मजमे से किसी ने सदा लगाई। 5 करोड़ एक। अजबाबाई ने सदा लगाई कि अगले लम्हे 10 करोड़ की आवाज़ आई। ये सिलसिला कुछ देर यूं ही चलता रहा। जब इनमें से किसी ने कहा कि पहले हमें इसका चेहरा दिखाया जाए, अजबाबाई ने उस घूंघट को सिरे से ही उतार दिया। उसने कर्ब से आंखें मींच ली। यहाँ कोई उस पर तरस खाने वाला नहीं था। सब उसके खरीदार बैठे थे। 25 करोड़। इस बार गूंजने वाली आवाज़ आतिम शाह की थी। मजमे में बैठे हर मर्द ने उसे मुड़कर देखा था। वो वाकई बहुत बड़ी रकम थी। कुछ मिनट तक कोई ना बोला। देखा, कहा था ना, नवाब आतिम शाह को झुकाना मर्दों का काम है, नामर्दों का नहीं। जवान ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। वो सबको नामर्दों का खिताब दे चुका था जबकि नामर्द वाली बुजदरी वो खुद कर रहा था। 25 करोड़ एक। 25 करोड़ दो। उशबाबाई दाएं हाथ की उंगलियां उठाते जैसे इख्तिताम को थी। 90 करोड़। ये आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई तो उमड़ने वाले आंसू गाल तक आ पहुंचे। आखिर कौन था जो उसकी इतनी बड़ी कीमत लगा रहा था? उशबाबाई जवार को हैरत और बेयकीनी से देख रही थी। हवा में उठती उसकी तीसरी उंगली वहीं साकित रह गई थी। 90 करोड़ एक। 90 करोड़ दो। 90 करोड़ तीन। मुबारक हो खान बाबा, ये खूबसूरत हसीना आपकी हुई।
आतिम गुस्से से खड़ा हुआ। तवाइफ खाने में आज पहली बार किसी ने उसे नीचा दिखाया था। उसका दिल किया वो ज़वार का मुंह नोच डाले, मगर वो क्या कर सकता था। वो ज़वार की लगाई कीमत से आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता था। उजबा बाई चलकर ज़वार के पास आई। वाह खान बाबा, आखिर मानना पड़ेगा आपको, नवाबों को शिकस्त दी, बाजी जीत गए आप। उजबा बाई के कहने पर ज़वार ने आतिम की तरफ देख कर फखरिया मुस्कुराया। आतिम लम्हा भर भी वहाँ ना रुका और वहाँ से चला गया। आप चाहे तो उसका हुस्न देख सकते हैं। उजबा बाई ने ज़वार को मुखातिब किया। ज़वार ने नफ़ी में सर हिलाया। जैसा आपको ठीक लगे, वो आपकी चीज़ है, आप जब चाहे उसे देख सकते हैं। अस्बात में सर हिलाते वो हारिब के साथ एक कमरे में आ गया। महरूश को वापस उसके कमरे में लाया गया, जहाँ पर उजबा बाई उसे हिदायत दे रही थी कि अब उसे खान बाबा की कनीज़ बनकर ही रहना होगा, वरना अपने अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। साथ में खान बाबा के कुछ चर्चे भी उसे सुना रही थी। इससे बड़ी जहन्नम और क्या होगी। दहशतगर्दों के खिलाफ वो लड़ने का सोचती थी। आज वो उसी की रखेल बनकर जा रही थी। उसका ख्वाब टूट चुका था। वो वाकई ये एक तवाइफ साबित हुई थी। कोई नहीं था उसको बचाने वाला। भेड़िए की शक्ल में इंसान थे जो बस उसका हुस्न नोचना चाहते थे। उसे पूरी रात अजाब लगने लगी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि अब क्या होगा इस लड़की का। क्या वो तवाइफ बन जाएगी, क्या वो बस एक रखेल बनकर रहेगी, क्या करेगा ज़वार उसके साथ। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।